محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. 300 کار 5000 بائک سروں کے سمندر. وہ قدم قدم پر عوام کی جانب سے شاندار استقبال کے ساتھ محترمہ کلوا کٹلا کویتا کی ضلع کو آمد. جناپلی میں کیا منڈل کا افتتاح. ایم پی بی پاٹل پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، ملکاجگیری ایم ایل اے ہنمنت راؤ، ایم ایل اے شکیل عامر، ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا و دیگر کی تقریب میں شرکت. دلی سرکاری ہاسپٹل میں کووڈ ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز. کووڈ کا ایک ہی علاج، ویکسینیشن. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی. بی جے پی قائدین اپنی زبان سے ہندو بھائیوں کو تنقید کا شکار نہ بنائے. مذہب کی سیاست چھوڑے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرے. جناپلی میں مندر کی افتتاحی تقریب سے بودھن رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کا خطاب. ہائی کورٹ وکلا جوڑے کے بہیمانہ قتل کرنے والے قاتلوں کو فی الفور سزا دی جائے. کانگریس ایم ایل سی جیون ریڈی کا صحافتی بیان. شب معراج و شب برات کے مدنظر قبرستان قدیم و جدید میں صفائی کام تیزی سے جاری. صدر کمیٹی افضل خان کے ہمراہ کمیٹی اراکین نے لیا جائزہ. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا کے جناپلی کو جانے کے دوران ضلع میڈچل کے مقام پر ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ قائدین و عوامی نمائندوں کی جانب سے پرزور استقبال کیا گیا. متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا کے جناپلی کو جانے کے دوران ضلع میڈچل کے مقام پر ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ قائدین و عوامی نمائندوں نے شاندار پیمانے پر پرزور استقبال کیا. اس موقع پر انہوں نے پہلے مرحلے کے طور پر امبیڈکر مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر کے زیر قیادت طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی. علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ٹی آر ایس پارٹی برسر اقتدار آئی اور تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کے چندرشیکھر راؤ اختیار پر فائز ہوئے. ریاست تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اختیار سنبھالنے کے بعد ریاست کے تمام طبقات بالخصوص مسلم اقلیتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ غریبوں کی پریشانیوں سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے انہوں نے غریبوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مختلف فلاحی اسکیمات کو متعارف کرنے کا انکشاف کیا. اس موقع پر ان کے ساتھ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر، اربن ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا، ظہیر آباد ایم پی بی پاٹل و دیگر نے شرکت کی. موجودہ کمیٹی قبرستان قدیم و جدید کی 11 سالہ بیلوس خدمات اس سال بھی جاری. شب معراج و شب برات کی آمد کے سبب قبرستان قدیم و جدید کے جنگی خطوط پر صفائی کے کام جاری. صدر کمیٹی افضل خان و دیگر کمیٹی اراکین نے کیا دورہ و رکن اسمبلی، میئر، ڈپٹی میئر و کارپوریٹرز کا کیا شکریہ. ہر سال شب معراج و شب برات سے قبل عیدگاہ کمیٹی نظام آباد تمام قبرستانوں کی صفائی کے کام انجام دیتی ہے اور موجودہ کمیٹی صدر افضل خان کی نگرانی میں گزشتہ 11 سالوں سے اپنی بیروز خدمات انجام دے رہے ہیں اور آج انہوں نے قبرستان میں جاری صفائی کاموں کا مکمل طور پر جائزہ حاصل کیا اور ذمہ داروں کو مختلف ہدایتیں جاری کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قبرستان کی صفائی کے لیے پہلے قبرستان کمیٹی ہی خرچ کرتی ہے اور پھر ایم ایل اے، میئر، ڈپٹی میئر و کارپوریٹرز کی کاوشوں کے سبب خرچہ کی گئی رقم واپسی حاصل کی جاتی ہے، جس کے لیے ہم مشکوک و ممنون ہیں اور ہر سال مہمان اور راحل کی نگرانی میں صفائی کے کام انجام دیے جاتے ہیں. اور قبرستان قدیم و جدید میں ایک پبلک ریلیشنر آفیسر ہے جن کا نام
हाफिज इब्राहिम है, इनसे राब्ता पैदा करते हुए आप अपने मसाइल से इनको वाकिफ करवा सकते हैं। और कब्रिस्तान के मतलब कोई भी शिकायत होने पर पहले सोशल मीडिया से कब्ल इनसे राब्ता पैदा करें। इस मौके पर इनके हमरा दीगर अराकीन कब्रिस्तान मौजूद थे। अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन खिदमत अदा कर रही है। इन खिदमत के ताल्लुक़ से शहर के बुजुर्गान दीन और मौज़िज़ीन को पता है, तमाम लोग जानते हैं, और हमेशा से शहर के मौज़िज़ीन ईदगाह कमेटी के कामों को अप्रिशिएट करते आए हैं। हर साल की तरह पिछले 11 साल से हम दोनों क़ब्रिस्तान जदीद व क़दीम में शब बारात से पहले उसके खारदार झाड़ियों की सफाई का काम करते हैं। इस सफाई के काम की निगरानी हमारे नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब करते हैं पिछले 11 साल से। ये काम बहुत मेहनत का है। वो रोज़ाना कितने भी मसरूफियत होने के बावजूद रोज़ाना 3 दफ़ा कम से कम क़ब्रिस्तान आते हैं, लेबरों को चेक करते हैं कि काम कर रहे नहीं कर रहे, सही कर रहे नहीं कर रहे। चूँकि लेबरों को मजदूरी ईदगाह कमेटी से दी जाती है, जो ईदगाह कमेटी के पैसे हैं वो आप लोगों के चंदे के हैं, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल हो, इसलिए पूरी मेहनत से वक्त लगा के उसका काम करा। कंप्लीट होने के बाद जितना खर्चा हुआ उसका बिल म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर पेश किया जाता है। म्यूनसिपल काउंसिल में ये अमाउंट आने के लिए एमएलए साहब, मेयर मैडम, डिप्टी मेयर साहब और तमाम कारपोरेटर्स की जो है ना सपोर्ट से, वो लोगों की तवस्सुत से जो है ना हमको इसका अमाउंट मिलता है। इसके अंदर होता है। दूसरी और एक बात, तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि यहाँ पर हम एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुकर्रर करे हैं, जिनको तनख्वाह दी जाती है, जो 24 घंटे आपके फ़ोन को लिफ्ट करते हैं और आपकी तकलीफ़ दूर करते हैं। हाफिज़ इब्राहिम साहब, अगर कब्रिस्तानों के अंदर या ईदगाहों में कोई आपको किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो मेहरबानी करके सोशल मीडिया पे डालने के बजाय पहले हाफिज़ साहब से या मुझसे या नायब सदर साहब से या राहिल साहब से बात करें। अगर हम लोग बीजेपी का ही रुकन हिंदू वरना नहीं, हम शमशान घाट बनाए और इसमें टीआरएस वालों को दफन करेंगे। ऐसे बयानात के साथ एमपी अरविंद बीजेपी कायदीन हिंदू भाइयों का दिल इज़ाई ना करें। मजहब की सियासत से तरक्की नहीं होती, अगर होती तो पेट्रोल का रेट और महंगाई भी कम होती थी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का जनापल्ली में मंदिर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब व जनापल्ली को मंडल मरकज बनाने व इसकी तरक्की के लिए एमएलसी के कविता से की नुमाइंदगी। సంవత్సరాల కిందట కట్టిన శివాలయాన్ని ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు అన్న హనుమంతరావు గారు దానికి పునరుద్ధరించి ఈరోజు కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ ఆదాయం పెట్టి ఈ ఆలయాన్ని కట్టడం జరిగింది। దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు కవితక్క గారికి, హనుమంతరావు అన్న గారికి, జహీరాబాద్ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారికి, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే మళ్ళా గణేష్ గుప్తా గారికి, ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారికి, ఎమ్మెల్సీ ఆకుల లలిత గారికి, మాజీ ఎమ్మెల్యే సీనియర్ నాయకులు రవీందర్ రెడ్డి గారికి, ఎమ్మెల్సీ దయానంద్ గారికి, మళ్ళీ ఇక్కడ విచ్చేసిన మేయర్లకు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి, మేయర్స్కి, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీలు, కార్యకర్తలు, గ్రామస్తులు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మళ్ళీ అతి పురాణమైన ఈ ఆలయాన్ని మళ్ళీ తిరిగి కట్టిన గౌరవనీయులు గొప్పలు హనుమంతరావు అన్న గారికి జన్నేపల్లి గ్రామస్తుల తరఫున, బోధన్ నియోజకవర్గ తరఫున, మళ్ళా నిజామాబాద్ మళ్ళా ప్రజల తరఫున, అన్నాదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు అందరి తరఫున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మళ్ళా ముఖ్యంగా గౌరవ అక్కగారు వచ్చిండ్రు, హనుమంతరావు అన్న హైదరాబాద్ నుంచి ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతూ గతంలో రామాయణపేట ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు। అంత ఏరియా కూడా చాలా గుండెల్లో ఉన్న మనిషి, యువకుల గుండెల్లో ఉన్నారు। మళ్ళా మహిళలు అపారమైన వారికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, చాలా మంచి వ్యక్తి। ఇక్కడ జన్నేపల్లి గ్రామానికి వారు ఇక అల్లుడుగా ఉండడం మా గ్రామస్తుల నియోజకవర్గ అదృష్టంగా భావించి మళ్ళీ వారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మళ్ళా ముఖ్యంగా ఇంత మంచి ఆలయం ఉంది ఇక్కడ। టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న సాంప్రదాయము, ఒక హిందూ ముస్లిం అన్నదమ్ముల చరిత్ర
ఈరోజు సృష్టిస్తూ చాలా మంచి పాలన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కొనసాగుతూ ఉన్నారు. అంటే ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదు కానీ ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నా, ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉంటేనే హిందువులు, మళ్ళీ వేరే పార్టీలో ఉంటే హిందువులు గారు అని చెప్తా ఉన్నారు. దయచేసి మీరు ఆలోచించాలా. ఒకటే మాట, మొన్న బాన్స్వాడలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మేము శ్మశాన వాటికలు కట్టిస్తున్నాం, దాంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు సమాధి కట్టడానికి చేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది. చాలా సిగ్గుచేటు. అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న హిందూ అన్నదమ్ముల గురించి మీరు మాట్లాడుతున్న మాటలు చాలా నిజంగా చాలా బాధ పెడతా ఉన్నాయి. ఇటువంటి మాటలు దయచేసి మాట్లాడద్దు. మళ్ళా హనుమంతన్న గారు మంచి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. గౌరవ ఎమ్మెల్సీ అక్క కవితక్క గారికి ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రత్యేకంగా జన్నేపల్లి గ్రామంలో సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టమ్, మళ్ళీ ఈ ఆలయానికి మేము నడుచుకుంటూ వచ్చినాం. దారి చాలా మంచిగా ఇప్పుడైతే టెంపరీ హనుమంతన్న సొంతంగా వారి పైసలు పెట్టి చేసిండ్రు. మళ్ళీ అక్క కవితక్క గారు మళ్ళీ మీ యొక్క నిధులతోని ఈ సీసీ రోడ్లు ఇక్కడ వరకు చేస్తే, మళ్ళీ సెంట్రల్ లైటింగ్ చేస్తే, తర్వాత జన్నేపల్లిని మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా మీరే లెటర్ ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళీ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ మీ యొక్క ఆశీస్సులు మాకు ఉండి ఈ గ్రామ అభివృద్ధి కొరకు మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ జన్నేపల్లి అల్లుడు హనుమంతరావు అన్న ఉంటే, మా పొత్తంగలు బోధన్ నియోజకవర్గం కోడెలు కవితక్క గారు ఉన్నారు. మళ్ళీ రెండు తరఫాల మాకు అదృష్టం ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అక్కగారు ప్రత్యేక కృషి తీసుకొని మళ్ళీ మా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని నేను ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మళ్ళీ హనుమంతన్నకు మల్కాజిగిరి నుంచి వచ్చిన, మెదక్ నుంచి వచ్చిన, రామాయణపేట నుంచి వచ్చిన, యావత్ హైదరాబాద్ నుంచి తన ఎంబడి వచ్చిన యువకులకు, అన్నదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెలకు అందరికీ బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నమస్తే. जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 60 साल और 45 साल से 59 साल तक के तवील मुद्दती अमराज से मुंसलिक अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शिरकत कर अपनी वालिदा को वैक्सीनेशन की खुराक दिलवाई। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 60 साल और 45 साल से 59 साल तक के तवील मुद्दती अमराज रहने वालों को कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शिरकत करके इन्होंने अपने वालिदा को वैक्सीनेशन की खुराक दिलवाई। इस मौके पर कलेक्टर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 21 मार्च से जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रगति प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकवर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ एक हफ्ते में जिले सतह तक वैक्सीनेशन फ्राहम करने की कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि रोजाना सुबह के औकात में 10 बजे से 4 बजे तक वैक्सीनेशन की खुराक देते हुए हर रोज हर एक सेंटर में तकरीबन 200 अफराद को वैक्सीनेशन देने के लिए कार्रवाई की जा रही और मुकामी अवाम कॉलिन गवर्नमेंट इन ऐप के तहत ऑनलाइन में रजिस्टर कर सकते हैं या फहरिस्त के औकात में बुक करके वैक्सीनेशन के मरकज पहुंच सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर पोर्टल के खाली रहने पर 3 घंटे तक बुक करने की सहूलत रहेगी। इसी तरह से GGH में रास्त तौर पर आ सकते हैं और इन्होंने मजीद कहा कि GGH में वैक्सीनेशन की खुराक मुफ्त दी जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए वैक्सीनेशन की कीमत रहने का इजहार करते हुए कहा कि हर कोई फर्द अपने आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन की खुराक लेने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में DMNHO सुदर्शनम, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर चंदर व जिम्मेदार डॉक्टर्स ने शिरकत की। अलहदा तेलंगाना तहरीक में सबसे पहले शमूलियत इख्तियार करने वाले डॉक्टर के चिरंजीवी की सेहत नासाज होने की इत्तला पर MLC के कविता दवाखाने पहुंच गए। अलहदा तेलंगाना तहरीक तमाम अवाम के भरपूर ताउन से कामयाबी से हमकिनार हुई है। मुजाहिदे तेलंगाना को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अलहदा तेलंगाना तहरीक में सबसे पहले शमूलियत इख्तियार करने वाले डॉक्टर के चिरंजीवी सेहत नासाज होने की इत्तला पर MLC के कविता दवाखाने पहुंच गई और डॉक्टर से के चिरंजीवी की सेहत से मुतालिक आगाही हासिल करते हुए बेहतर व तेज रफ्तार तिब्बी इलाज फराहम करने पर जोर दिया। MLC के कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव डॉक्टर के चिरंजीवी की सेहत से मुतालिक वक्फे से आगाही हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हर शख्स ने अपना भरपूर ताउन दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के हर शख्स, हर खानदान, हर तबके के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। डॉक्टर के चिरंजीवी की तेज रफ्तार सेहतयाबी के लिए MLC के कविता ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
जिले निजामाबाद के मुकाम पर कांग्रेस भवन में ग्रेजुएट एमएलसी जीवन रेड्डी ने वकला की जानिब से वकला जोड़े के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ मुनक्किद करदा भूख हड़ताल में शिरकत कर तायद फराहम की। जिले निजामाबाद के मुकाम पर कांग्रेस भवन में ग्रेजुएट एमएलसी जीवन रेड्डी ने मीडिया इजलास मुनक्किद करने के साथ निजामाबाद कोर्ट के पास वकला वमन राव और इनकी अहलिया के कत्ल के वाक़े के खिलाफ वकला की जानिब से मुनक्किद करदा भूख हड़ताल में शिरकत करके तायद फराहम करते हुए कहा कि वमन राव जोड़ा सियासी रस्साकशी से कोई ताल्लुक नहीं है, अवामी उसूल के खिलाफ गैर कानूनी रेत की सरबराही और गैर कानूनी अशिया के खिलाफ बाइकाट से राब्ता कर हुकूमत की निगरानी में जारी करदा गैर कानूनी कामों की तफसीलात को वाज़े करने की बिना पर ही इनका बेरहमाना कत्ल किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वकला वमन राव जोड़े के कत्ल में मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए कहते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम में वकला का अहम तरीन रोल रहा है और तेलंगाना तहरीक के दौरान एडवोकेट की जानिब JSC का क़याम अमल में लाकर कोर्ट को खारिज करके मरकजी हुकूमत पर जोर डालते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल करने के लिए अहम तरीन कोशिशें करने वाले एडवोकेट को बेरहमाना कत्ल करने में मुलविस अफराद कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। ప్రశ్నించే సమాజానికి ప్రశ్నించే గొంతుకలైనటువంటి న్యాయవాదులను వారి గొంతు నులిమివేసే విధంగా ఇలా వామన్ రావు దంపతులను హత్య చేయటం నిజంగా ఇది యావత్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరి హత్య గావించబడ్డట్టుగా భావించక తప్పదని చెప్పంటూ నేను ఇవాళ వామన్ రావు గారి దంపతులు వారు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏదైతున్నదో ఇది పుట్టలింగమ్మ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టబడుతున్నటువంటి అక్రమ వసూళ్లు ఇసుక అక్రమ వ్యాపారాలను నిరోధించే విధంగా మరి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ద్వారా నిలువరింపజేసే చర్యలు చేపడుతుండ్రో వారికి ప్రాణహాని ఉందనేటువంటి ఒక భావనతోని వారికి తగు రక్షణ కల్పించే విధంగా హైకోర్టు కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది। प्रोग्राम में PCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, गड़गू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, PCC सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, जिले लीगल सेल सदर राजेश्वर रेड्डी, जिले किसान कांग्रेस सदर मुप्पा गंगा रेड्डी, जिले BC सेल सदर शेखर गौड़, युवा जना कांग्रेस सदर विकी यादव, NSVI सदर वेनुराज, NSVI रियासती जनरल सेक्रेटरी विपुल गौड़, DCC नायब सदर अंति रेड्डी, राजा रेड्डी, दियाकर गौड़, जनरल सेक्रेटरी श्रीकोंड, माजिद खान, प्रमोद, चिंटू, सूर्या और दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता का 300 से जायद कारें वो 5000 बाइक सवार के हमरा जिले को आमद के मौके पर कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने किया पुरजोर इस्तकबाल। 300 से जायद कारें और 5000 बाइक सवार अनगिनत सरों के समंदर के शाही अंदाज में रुकन सास कौंसिल के कविता की जिले को आमद पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के अलावा इस रैली को जनेपल्ली तक जारी रखते हुए इस मुकाम पर MLC के कविता ने मंदिर का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाने के साथ TRS हुकूमत अखिलतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के अहद की पाबंद है और गुज़िश्ता 6 साल के दौरान हुकूमत ने अखिलतों की तरक्की के लिए कई ठोस इक़दामात किए हैं, कई एक इनकलाबी स्कीमात को रोशनास करवाया है। इन्होंने बताया कि क़याम तेलंगाना के बाद TRS पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई और रियासत तेलंगाना में मुनफरिद स्कीमात मुतारफ की गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल हुई है। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजान होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर, जहूराबाद MP BB पाटिल व दीगर ने शिरकत की। SSC इम्तिहानी फीस के अदखाल की आखिरी तारीख में 5 मार्च तक तोसी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी PIJAC के अरकान की जानिब से रुकन कौंसिल कलवाकुंटला कविता और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन DSE से कामयाब नुमाइंदगी के बाद SSC इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की आखिरी तारीख में 5 मार्च तोसी कर दी गई है। अब तलबा बगैर कोई देरीना फीस के अपने अपने स्कूल के हेडमास्टर के जरिए इम्तिहानात की फीस 5 मार्च तक दाखिल करवा सकते हैं। स्कूल हेडमास्टर्स की जानिब से फीस की अदायगी स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया के किसी भी ब्रांच के जरिए की जा सकती है। रियासत में एसएससी इम्तिहानात का आगाज 17 मई से होगा और 26 मई तक जारी रहेगा और कोविड-19 के सबब 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स होंगे। वाज़ेह है कि PIJAC के वफद ने सीनियर TRS कायद व साबिक चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान की ज़ेर क़यादत 3 रोज कबल TRS रुकन काउंसिल कलवाकुंटला कविता से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए प्राइवेट स्कूल को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया था, जिस पर कविता ने इनकी आजिलाना एक्सवी करने का तयक़ुन दिया था और महकमे तालीम के DSC को फोन करते हुए इनके अफकारात से वाकिफ करवाया था। DSC ने इनके मसाइल सुनने के बाद आज 1 मार्च को फीस अदखाल की आखिरी तारीख में 5 मार्च तक तौसी के अहकामात जारी की। PIJAC के वफद ने रुकन काउंसिल के कविता, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, TRS कायद आबिद रसूल खान, DSC देवसेना, डायरेक्टर इम्तिहानात A सत्यनारायण रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आर्मर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में खून का अतिया प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में खून का अतिया प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने शिरकत करके खून का अतिया कुनिनगान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले खुसूसी शख्सियतों और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन मेंबरान ने बात करते हुए कहा कि मदद करने के जज्बे के तहत पहल करके खून का अतिया काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स को मजीद ब्लड कैंप मुनक्किद करके अवाम को खिदमत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट नागराजू, म्यूनिसिपल काउंसलर्स गंगा मोहन, सुनकरी रंगना, राजू, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप मुंतजमीन राम रेड्डी, देविंदर, पद्मा, देश पांडे, रामलू प्रकाश, गोविंद राजा स्वामी, रमेश रेड्डी, नित्या एंड श्रीनिवास सदानंद, लक्ष्मण, श्रीहरि व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मोड़ताड़ MPP चैम्बर में महकमे रेवेन्यू की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कल्याण लक्ष्मी चेक्स की फ्राहमी प्रोग्राम मंडल TRS पार्टी सदर की निगरानी में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुनिनगान में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मोड़ताड़ MPP चैम्बर में महकमे रेवेन्यू की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कल्याण लक्ष्मी चेक्स की फ्राहमी प्रोग्राम मंडल TRS पार्टी सदर कलेड़ा इलैया की निगरानी में मोड़ताड़ MPP शिवालिंगू श्रीनिवास, वाइस MPP श्रीनिवास, तहसीलदार श्रीधर व दीगर सरपंच व MPTC के हाथों इस्तेफादा कुनिनगान में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस अहम तरीन मौके पर शिरकत करने वाले अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मुख्तलिफ मंडल्स के मुंसलिक मौज़ूआत के 17 गरीब व कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक़ ख़वातीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की फ्राहमी अमल में लाने पर मुस्तहिक़ीन ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात के बाइस मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने इनका इजहार तशक्कुर करते हुए हाल ही में TRS रुकनियत साजी मुहिम का आगाज अमल में लाने पर मुकामी अवाम की जानिब से जोग दर जोग हिस्सा लेकर TRS रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने का इंकशाफ किया। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे निजाम सागर मंडल के आजमपेट देहात में रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल के अचंपुपेट देहात में रायतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों के लिए बनाए गए क्लस्टर्स शोबा ज़राअत में इनकलाब बर्पा करेंगे और किसानों को एकजा बैठने और ज़राअत के सिलसिले में गौर फिक्र का मौका फराहम करेंगे। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ये यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए हैं कि काश्तकारों को फसलों की काश्त के लिए साल के 365 दिन सैराब जमीन तक रसाई हासिल होगी। इन्होंने कहा कि काश्तकारी ज़रई माहिरीन और ज़रई ओहदेदारों की हिदायत और मशवरों पर अमल करें और बेहतर काश्तकारी के तरीके के जरिए फसलों को मुनाफा बख्श काश्त करने का इजहार करते हुए बताया कि किसान अपने तजुर्बात ज़रई माहिरीन और साइंसदानों के मशवरों पर अमल करके नफा बख्श फसल को तैयार करके बेहतर कीमत हासिल करने के लिए कहते हुए बताया कि किसानों को हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए किसानों के जाती मसाइल के अलावा तमाम मसाइल को हल करने के लिए TRS हुकूमत पूरी तरह तैयार होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ ज्योति दुर्गा रेड्डी, TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की।
రైతు బంధు సమితితో పాటు అధికారికంగా దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి క్లస్టర్కు ఏఈఓ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఉండే విధంగా 1050 పోస్టులను భర్తీ చేసి ఈరోజు రైతులకు సహాయకారిగా ఉండే విధంగా ప్రతి క్లస్టర్లో ఏఈఓ ఉండే విధంగా మరి రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా మరి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసి, అంతేకాకుండా ప్రతి క్లస్టర్లో ఒక రైతు వేదిక, రైతులు కూర్చొని మరి మన గ్రామంలో ఏ పంట వేసుకోవాలి, ఏ పంట వేసుకుంటే లాభసాటిగా ఉంటుంది, వరి వేయాలా, గోధుమలు వేయాలా, లేకపోతే జొన్నలు వేయాలా, మక్కలు వేయాలా, శనగ వేయాలనా, సోయా వేయాలనా, ఏ పంట। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत के मुताबिक गुज़िश्ता यौम पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल पर ई चालान के जरिए आयद करदा जुर्माने की रकम को ऑनलाइन या आपके करीब में वाक़ई मी सेवा सेंटर पर जुर्माने की रकम को फिलफुर अदा करने की तायद की। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत के मुताबिक कमिश्नरेट के अहाते में ट्रैफिक उसूल को खातिर न लाने वाले अफराद पर पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल पर ई चालान के जरिए आयद करदा जुर्माने की रकम को पुलिस नजर में रखकर तातुल के शिकार ई चालान को फिलफुर बनने के लिए ताकीद करते हुए बताया कि इसी को मद्देनजर रखते हुए निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में वाक़े 33 पुलिस स्टेशन में स्पेशल ड्राइव मुनक्किद करते हुए तनक़ी अमल में लाई जा रही है और ट्रैफिक उसूलों को नजरअंदाज करने वाले मोटरसाइकिल मालिकीन को जुर्माना आयद करके इसी के साथ गुज़िश्ता मोटरसाइकिल पर आयद करदा बकाया जात का जायजा लेने के साथ 3 से ज़ायद ई चालान होने पर इस गाड़ी को सीज करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की जानिब से हिदायत जारी की गई और मोटरसाइकिल पर वाक़े पेंडिंग ई चालान जुर्माने को ऑनलाइन या आपके करीबी वाक़े मी सेवा सेंटर पर रकम की अदायगी करने पर मोटरसाइकिल मालिकीन को हवाले किया जाएगा। अवाम यूट्यूब व सोशल मीडिया के फितनों से बचे और दीनी मालूमात के लिए मुकामी उलमाए दीन से राब्ता करें और कलमा तैयबा के माने व मफहूम को समझते हुए ज़िंदगी गुजारें। कामारेड्डी में मुनक़दा इज्तिमाए आम से शेख अब्दुल हसीम मदनी साहब का खिताब। 28 फरवरी बरोज़ इतवार बाद असर ताइशा ज़िले जमीयतुल अहले हदीस निजामाबाद के ज़ेर निगरानी एक अज़ीम शान इजलास बमुकाम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल कामारेड्डी में मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर फजीलतुल शेख हाफिज अब्दुल हसीब मदनी हफ्ज़हुल्लाह उस्ताद कलियतुल हदीस बेंगलुरु ने शिरकत फरमाई। इजलास 2 नशिस्तों पर मुनक़सम था। पहली नशिस्त का आगाज बाद असर व तिलावत कुरान मजिद के बाद जनाब मोहम्मद अली साहब दाई जमीयत अहले हदीस निजामाबाद ने तेलुगु जबान में मुस्लिम व गैर मुस्लिम सभी को अल्लाह की वाहिदानियत का दर्स दिया। अदायगी नमाज मगरिब के बाद दूसरी नशिस्त का आगाज हुआ। मदरसा दारुल तौहीद रहमानिया निजामाबाद के तालिब इल्म मोहम्मद अनीस बिन मोहम्मद पाशा ने सूरे अल इमरान की आयत पढ़ी। हमद बारी ताला सैफ खान ने पेश की। शेख अब्दुल खालिक मोहम्मदी ने कुरान से दूरी के असबाब और इसका हल बताया। बाद में मेहमान मुकर्रर शेख अब्दुल हसीब मदनी हफ्ज़हुल्लाह ने अपने खिताब में बड़ी अहम तरीन बातें रसूल के हवाले से पेश। कलमे तैयबा के 2 टुकड़े, एक में अल्लाह की बंदगी का दर्स है, वहीं दूसरे टुकड़े में रसूल के तरीके पर बंदगी का हुक्म है। कोई भी शख्स अत्बा रसूल को अपना कर अल्लाह का वली बन सकता है। विलायत किसी खानदान की जागीर नहीं। ये बात वाज़े हो जाए कि आदमी अत्बा की राह पर चलेगा, अल्लाह का महबूब हो जाएगा। तलखीस शख्सी तलखीस जामद अत्बा रसूल की मारूफ है। आपने उलमा कराम से जुड़े रहने की तरगीब दिलाई और कहा कोई भी शख्स आज के जमाने में यूट्यूब वगैरह पर कुरान व सुन्नत के नाम से अवाम के ईमान व अक़ीदे पर डाका डाल रहा है। अत्बा का झांसा देकर अत्बा रसूल से मोड़ रहा है। ऐसे फितनों से बाखबर रहने की जरूरत है। जलसाया में अल जनाब अब्दुल वाजिद साहब ज़िले अमीर निजामाबाद, ज़िले नाज़िम मोहतरम व मुकर्रम जनाब वजीउल्लाह खान साहब व खाजिन ज़िले जनाब आरिफ साहब, रियाज अब्दुल्ला, अजहर साहब, जिम्मेदारान जमीयत कामारेड्डी के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की एक बड़ी तादाद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत फरमाई। निज़ामत के फ़राइज़ हाफिज इमरान सल्फी नज़ीरी नाज़िम मदरसा दारुल तौहीद रहमानिया निजामाबाद ने अंजाम दिए और जमिया हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। तमाम मुशारिकीन जलसे के लिए ताम का नज़्म रखा गया। जिले निजामाबाद के अखिला भारतीय मजदूर संगम की निगरानी में नियालकल रोड पर वाक़े PF ऑफिस पर रुकनियत साजी मुहिम का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया।
जिले निजामाबाद अखिला भारतीय मजदूर संगम की निगरानी में नियालकल रोड पर वाक़े पीएफ ऑफिस पर रुकनियत साजी मुहिम का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले अखिला भारतीय मजदूर संगम के कौमी सेक्रेटरी मचल श्रीनिवास ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मौजूदा सफाई मजदूरों को रुकनियत साजी दिलाकर इनके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर संगम कारकर्दगी अंजाम देने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सफाई मजदूरों को पीएफ और ECI एंड लेबर कार्ड की फराहमी के लिए अहम तरीन कार्रवाई करने के लिए मुतालबा किया और इसी तरह से सफाई मजदूरों को कम से कम उजरत में तब्दीली लाने की शदीद जरूरत है और खास तौर पर सफाई मजदूर के मैदान में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को मनसूख करने के लिए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 को दोबारा जायजा लेने के अलावा अमेंडमेंट कानून को पार्लियामेंट में रखने के लिए मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में अखिला भारतीय सफाई मजदूर संगम निजामाबाद जिले सदर की विजय कुमार, रियासती सेक्रेटरी सिद्धम राजेश्वर नरेंद्र, जिले जनरल सेक्रेटरी M चंद्रशेखर, जिले नायब सदर सुखवीर सिंह, बाल संदीप, खवातीन मेंबरान आशमा, सावित्री लक्ष्मी, मुमताज भी वो दीगर ने शिरकत की। సఫాయి కార్మికుల కోసము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. అఖిల భారతీయ సఫాయి మజ్దూర్ సంఘ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే సఫాయి కార్మికులకు మినిమం వేజ్ అందియాలి. అదే రకంగా ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నదో ఈ కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ను రద్దు చేసేసి పర్మనెంట్గా ఈ యొక్క సఫాయి కార్మికులను అపాయింట్ చేయాలని డిమాండ్తో ముందుకెళ్తున్నాము. మన దగ్గర నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఈ రోజు నుంచి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాము. జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్, ఎక్కడైతే సఫాయి కార్మికులు పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కలుస్తాము, సభ్యత్వం ఇస్తాము. నెలకు 10 రూపాయలు చొప్పున సభ్యత్వం ఉంటుంది, 30 రూపాయలు అడ్మిషన్ ఫీజు ఉంటుంది. సభ్యత్వము ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే సంఘంకు బలం కావాలా, పుంజుకోవాలా, సంఘం డెవలప్ కావాలా. సంఘం తరపు నుంచి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపుతాం, మీకున్నటువంటి సమస్యల మీద మాట్లాడతాము. మినిమం వేజెస్ అనేది మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలయ్యే విధంగా మన సంఘం పోరాటం చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నాము. అదే రకంగా రానున్న రోజుల్లో లేబర్ యాక్ట్ 1970 కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ లేబర్ యాక్ట్ను రద్దు చేయాలా, రద్దు చేసి ఈ యొక్క యాక్ట్ను అమెండ్మెంట్ చేసేసి పార్లమెంట్లో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరడం జరుగుతూ ఉన్నది. దీంట్లో భాగంగానే దేశవ్యాప్తంగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. మీ యొక్క అందరి సహకారంతో రానున్న రోజుల్లో సఫాయి కార్మికులకు సంబంధించిన హక్కులను इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 300 कार, 5000 बाइक, सरों के समंदर, वो कदम कदम पर अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल के साथ मोहतरमा कलवा कविता की जिले को आमद। जनापल्ली में किया मंडल का इफ्तिताह। MP बीवी पाटिल, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, मलकाजगिरी MLA हनुमंत राव, MLA शकील आमिर, MLA बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर की तकरीब में शिरकत। दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। कोविड का एक ही इलाज, वैक्सीनेशन। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। बीजेपी कायदीन अपनी जबान से हिंदू भाइयों को तनकीद का शिकार ना बनाए, मजहब की सियासत छोड़े, मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। जनापल्ली में मंदिर की इफ्तिताही तकरीब से बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। हाई कोर्ट वकला जोड़े के बेईमाना कत्ल करने वाले कातिलों को फिलफूर सजा दी जाए। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। शब मिराज व शब बारात के मद्देनजर कब्रिस्तान कदीम व जदीद में सफाई काम तेजी से जारी। सदर कमेटी अफजल खान के हमरा कमेटी अराकीन ने लिया जायजा।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।